A very good morning to all of my students. So beta, in today's class, we are going to revise our chapter 1, sexual reproduction in flowering plants. So let us begin. Sexual reproduction in the flowering plants beta. Clear? Plants are classified into two major groups, flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants are called angiosperms. What are flowering plants called beta? Angiosperms. Clear? And the non-flowering plants, they are called gymnosperms. Clear? Gymnosperms, they are having naked seed. Clear? In your flowering plants beta, the seed is enclosed inside the fruit. Clear? And in gymnosperms beta, there are no flower, no ovary, hence the seed is naked. Clear? So today we will deal, that is our angiosperm. So if you will draw diagram of a flower, let me quickly draw it. If we will see a basic structure of a bisexual flower here, so it is having four whorls beta. It is having four whorls. Out of these four beta, two are essential whorl. Two are essential whorl and two are non-essential whorl. If you will see a bisexual flower like hibiscus, here it is having both male as well as female reproductive part in a single flower only. That is why we call it bisexual flower. Okay. अगर आप एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का बेटा स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें क्या होते हैं, दो एसेंशियल वॉल होते हैं एंड दो नॉन एसेंशियल वॉल होते हैं. एसेंशियल वॉल क्या करते हैं बेटा, दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन. ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एसेंशियल वॉल. एंड नॉन एसेंशियल वॉल क्या करते हैं बेटा, दे डू नॉट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन. Clear? Essential whorl consists of androecium and gynoecium. And your non-essential whorl consists of and calyx. I'll show you the structure of the flower beta. If here you will see structure of a flower, see this one is the peduncle from which the flower is joined to the stem or the branch. Clear? Then there comes the swollen part, receptacle. Clear? Then beta is your outermost wall. It is called calyx. It consists of singular smaller units called
सेपल। कैलेक्स जो वर्ड है बेटा वो किससे मिलता है, बहुत सारी सेपल्स से मिलके। क्लियर, सी these are the sepals. Clear, they are green in color, leaf like structure, and their function is to protect the flower when it is in the bud stage. अगर आप किसी भी फ्लावर को देखोगे बेटा तो सबसे बाहर क्या होती है, ग्रीन ग्रीन कलर की छोटी सी पत्तियां होती है ना। क्लियर, तो इनका क्या काम होता है बेटा, when flower is in bud stage it will protect the essential wall of the flower. Clear, then comes your second word, corolla. Corolla consists of petals. Clear, जब भी आप flowers को देखते हो they come in different varieties, different colors. So the colored part बेटा these are your petals. Clear, petals are for attraction of the pollinators. कोई भी insect है, कोई भी bee है जिसके द्वारा हमें अपने plant को pollinate करवाना है, हमें pollens transfer करनी है, then this part of the flower will help. Here, third is the essential wall beta in a bisexual flower, androecium. Androecium consists of your stamens. It is the male reproductive part. It is the male reproductive part in a flower and it consists of stamen. If you will see the diagram of the stamen, this is a long stalk like structure. एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि यहाँ एक लोब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंथर। एंड ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, हमारा फिलामेंट। क्लियर, तो इस एंथर को जो हमारा फ्लावर है सेप्टिकल से कौन, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट। क्लियर, एंड इस एंथर में क्या प्रोड्यूस होते हैं बेटा, pollen grains are produced inside the anther. Here, so ये एंथर क्या मिलके बनाते हैं बेटा, थर्ड वॉल बनाते हैं which is the essential wall androecium. Clear, इसके बाद बेटा the innermost wall in the bisexual flower is of gynoecium. gynoecium, gynoecium किससे मिलके बनता है बेटा, pistil. Here, pistil is the female reproductive part of the flower. Here, let me quickly draw it for you. It is divided into three parts beta. The upper landing part where the pollen grain will land, this part is stigma. Here, then a tube like structure, this is the style. And here beta the basal swollen part, this is called ovary. Here, जो हमारा pistil है, female part है, reproductive part of the flower, it is divided into three parts, stigma, style and ovary. And जो हमारा stamen था, male reproductive part, it was divided into two parts, anther and filament. क्लियर, यहां तक बात समझ आई बेटा। क्लियर, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लिया। क्लियर, अब बेटा जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो कितनी फेजेस में डिवाइडेड है, थ्री फेजेस में। सबसे पहली फेज होती है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फेज होती है फर्टिलाइजेशन, एंड बेटा लास्ट फेज इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आप चैप्टर को पढ़ रहे हो, रिवाइज करने का एक प्रॉपर तरीका है। जो भी चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने होते हैं।
तो बेटा एक बड़ा सा टॉपिक है, उसको हम छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्लियर। और फिर बेटा जहां भी नेसेसरी हो, जो भी है हमारे फ्लो चार्ट की फॉर्म में, जैसे इस चैप्टर में हम करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, पोलिनेशन, तो इनको हम बेटा अगर फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना लेंगे देन इट विल बी इजियर फॉर अस टू रिकॉल द थिंग्स, क्लियर। सो पहली रिवीजन करने का तरीका है फ्लो चार्ट्स बनाओ, wherever you can make, try to make tables, clear। and beta lastly practice diagrams, your diagram should be well labeled and neat and clean, clear। so ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है रिवीजन के टाइम पे, क्लियर। अब मैंने क्या बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी चीजें हैं जो प्री फर्टिलाइजेशन में आती हैं बेटा। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन करने के लिए हमें चाहिए होते हैं गैमीट, तो सबसे पहले हमें क्या करानी है, गैमीट की फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस करेंगे, क्लियर। अब गैमीट्स बन गए, प्लांट्स हमें पता है दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्लियर, लाइक अदर लिविंग क्रीचर्स। तो हमें क्या करना है बेटा, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास लेके जाना होगा। सो हाउ दैट विल टेक प्लेस, इट विल टेक प्लेस बाय द प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन, क्लियर। सो प्री फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे, गैमीट फॉर्मेशन एंड पॉलिनेशन पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन सिंपली क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, क्लियर, टू फॉर्म अ जाइगोट, क्लियर। सिंपल सा प्रोसीजर है फर्टिलाइजेशन, लेकिन प्लांट्स में थोड़ा डिफरेंट वे में होता है। सो नेक्स्ट इज अवर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। अब जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाएंगे दे विल फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है बेटा, प्रोएम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो आगे कैसे डेवलप करेगा दैट वी विल स्टडी इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो सबसे पहले हमें क्या कराना है, प्री फर्टिलाइजेशन हमारा पार्ट रहेगा, इसमें हम पढ़ेंगे गैमीट की फॉर्मेशन, क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा माइक्रोगैमीट्स की फॉर्मेशन। क्लियर, मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं बेटा, इन द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमीट्स किसमें प्रोड्यूस होते हैं बेटा, इनसाइड मेल गैमेटोफाइट, क्लियर। और मेल गैमेटोफाइट क्या होता है हमारा, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, गैमीट नहीं, क्लियर। मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन्स के अंदर हमारे क्या बनेंगे, मेल गैमीट्स बनेंगे, क्लियर। फिर हमें क्या चाहिए होगा बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक को। किसको बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियो सैक, क्लियर। इसमें क्या होता है हमारा, फीमेल गैमीट डेवलप करता है। यहां तक बात समझ आई। तो हम पहले पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमीट, व्हिच इज कॉल्ड माइक्रोस्पोजेनेसिस। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने जैसा आपको बताया, ये क्या था हमारा स्टेमेन, और यहां था एंथर। जो ये एंथर है बेटा, इसके अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, क्लियर। तो एक बार इस एंथर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं।
एंथर कैसा होता है बेटा? अगर आप इसकी मॉर्फोलॉजी देखोगे बाहर से तो आपको ये कैसा दिखाई देता है? बाइलोब्ड। एंथर की कितनी लोब्स हैं बेटा? 2 लोब्स हैं, इसीलिए हमने क्या कहा इसको? बाइलोब्ड। टेट्रागोनल इन शेप एंड बेटा डाइथिकस। क्लियर? जब हमारा ये एंथर है इसको हम कट करेंगे लेटरली तो बेटा क्या होते हैं? एक लोब में, अगर हम एक लोब की बात कर रहे हैं देन वी विल कॉल इट डाइथिकस। ओवरऑल एंथर की बात कर रहे हैं देन इट विल बी टेट्राथिकस। क्लियर? बाइलोब एंथर है, 2 लोब्स हैं। अब इन 2 लोब्स के अंदर भी बेटा 2 कंपार्टमेंट्स हैं। 2 कंपार्टमेंट्स इस लोब के अंदर है एंड 2 कंपार्टमेंट इस लोब के अंदर है। तो टोटल हमारे पास कितने कंपार्टमेंट्स हो गए? 4। इसीलिए अगर हम एंथर की बात करते हैं देन वी विल कॉल इट टेट्राथिकस। अगर एक लोब की बात कर रहे हैं देन वी विल कॉल इट डाइथिकस। हियर so when you will see the structure of the anther, when you will open it will appear somewhat like this. Clear? ये हमारे 4 लोब्स हैं यहाँ पे। क्लियर? इन 4 लोब्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया। जैसे कोई भी सैक ले लिया, बोरी ले ली, क्लियर? उसके अंदर अगर हम आलू फिल कर देंगे तो आलू की बोरी हो जाएगी, टमाटर भर देंगे तो बेटा टमाटर की बोरी हो जाएगी। वैसे ही ये क्या है? एक पाउच है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब इसके अंदर अगर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। क्लियर? तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो कैसा सा स्ट्रक्चर लग रहा है? 4 साइड्स है, इट लुक्स लाइक अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। इसलिए हमने एंथर को क्या टेट्रागोनल शेप एंड डाइथिकस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल लोब। क्लियर? अब हम देखेंगे बेटा जिया के अंदर क्या होता है। इफ आई विल शो यू द डायग्राम, let me draw the diagram quickly. Clear? Same, exact same is on that side also. Let me clear it. Here, like this. अब क्या होती है? It is called epidermis. Clear? So ये क्या है? Epidermis. Outer layer. Outermost layer is called epidermis. Clear? इसका फंक्शन क्या होगा बेटा? It will protect. Clear? Protective in function. इसके बाद बेटा this is your एंडोथीशियम। एंडो यानी अंदर की तरफ, आउटर मोस्ट है हमारी एपिडर्मिस, इसके अंदर की तरफ क्या है बेटा? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम भी क्या है? इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर। प्लस बेटा जब एंथर हमारा फटता है उससे पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, इसको बोलते हैं डिहीसेंस। क्लियर? रिलीजिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। तो जब एंथर की डिहीसेंस होगी बेटा तो उसके लिए कौन सी वॉल रिस्पॉन्सिबल होती है? एंडोथीशियम। अब एंडोथीशियम के अंदर इसके भी इनर साइड पे अगर हम देखेंगे सो देयर आर लेयर्स, दे कैन बी 1 to 3, दे मे वेरी इन नंबर। क्लियर? These are middle layers. These are middle layers. Clear? They will also help in dehiscence. ये भी dehiscence of the anther में help करती हैं। अब बेटा inner most layer जो है
जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड टैपिटम. व्हाट इट इज कॉल्ड? टैपिटम. क्लियर? दिस इज द innermost layer, टैपिटम. इसका क्या फंक्शन होता है बेटा? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी. क्लियर? सो इट इज हैविंग डेंस प्रोटोप्लाज्म. इट इज हैविंग डेंस प्रोटोप्लाज्म. ओके. अब इसके अंदर जो बच गया बेटा, ये क्या है? इसके अंदर कुछ सेल्स है बेटा, इसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू. ये क्या है बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू. अगर हम एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे, देन द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस. उसके अंदर जाएंगे, देन इट इज एंडोथीशियम. इसके लगती हुई बेटा कौन सी होती है? मिडल लेयर्स. एंड देन बेटा इनर मोस्ट इज द टैपिटम. एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. प्लस में एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स क्या करती हैं बेटा? डिहिसेंस ऑफ द एंथर में भी हेल्प करती है. क्लियर? देन बेटा इनर मोस्ट लेयर वाज कॉल्ड टैपिटम. टैपिटम का फंक्शन क्या है? इट विल गिव नरिशमेंट, न्यूट्रिशन. क्लियर? Here your sporogenous tissue is present. क्लियर? इस स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर बेटा जितने भी सेल्स होते हैं उनमें क्या है बेटा? पोटेंशियल है, एबिलिटी है, दैट दे कैन अंडरगो डिवीजन. ये क्या कर सकते हैं बेटा? दे कैन अंडरगो डिवीजन. क्लियर? ये क्या कर सकते हैं? सेल डिवीजन कर सकते हैं. सो दे आर हैविंग दैट एबिलिटी, दे आर हैविंग दैट पोटेंशियल. तो हमने इन सेल्स को क्या बोल दिया? पोटेंशियल मदर सेल. क्लियर? और पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक है? एंथर के अंदर जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम था, उसके अंदर क्या था बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू था. इस स्पोरोजिनस टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं उनमें पोटेंशियल है कि वो आगे डिवाइड कर सकते हैं, मियोसिस कर सकते हैं. क्लियर? सो इसीलिए हमने इन सेल्स को क्या बोला बेटा? पोटेंशियल मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी और एमएमसी. तो हमारे जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, वो किससे बनेंगे? पोटेंशियल मदर सेल, पीएमसी या फिर एमएमसी से. क्लियर? अब हम देखते हैं बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती कैसे है. क्लियर? दिस इज अ पोलन मदर सेल. क्लियर? पीएमसी और एमएमसी. अब इसकी प्लॉइडी क्या है बेटा? 2n. ये क्या है? डिप्लॉइड. बॉडी में जितने भी सेल्स दे आर डिप्लॉइड. क्लियर? तो इसमें की बेटा मियोसिस. इसने क्या करी? मियोसिस करी. मियोसिस क्या होती है? हमारी रिडक्शनल डिवीजन होती है. क्लियर? सो डिप्लॉइड से कैसा सेल बनेगा बेटा? 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं. अगर कोई सेल मियोटिक डिवीजन करता है तो एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं बेटा? 4 सेल्स बनते हैं. और वो कैसे होते हैं? दे विल बी हैप्लॉइड. क्लियर? अब बेटा ये जो सेल्स हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं. क्लियर? दिस स्टिकी सब्सटेंस इज कॉल्ड कैलोस. क्लियर? अब क्या होता है? जो ये एक माइक्रोस्पोर बना, ये आगे फर्दर डिवाइड करेगा. क्लियर? कैसे? दिस इज आवर वन सेल. क्लियर? सो इट विल डू एसिमेट्रिक डिवीजन. क्लियर? एक बनेगा वेजिटेटिव सेल और एक बनता है रिप्रोडक्टिव और जनरेटिव सेल. क्लियर? दिस इज वेजिटेटिव सेल
and this is generative cell. क्या हुआ, हमारा पोटेंशियल मदर सेल था, पोलन मदर सेल था, ये कैसा था बेटा, डिप्लॉइड था, इसने मियोसिस करी, एक से कितने बनाए, 4 सेल्स बनाए। तो जो ये 4 सेल्स हैं बेटा, ये आपस में चिपके हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोज लेयर से। अब बेटा जब हमारा माइक्रोस्पोर बन रहा होता है तो ये डिहाइड्रेशन के बाद क्या हो जाएंगे बेटा, सारे अलग अलग हो जाएंगे सारे माइक्रोस्पोर्स। अब जो एक माइक्रोस्पोर है उसमें क्या होगा बेटा, एसिमेट्रिक डिवीजन होगी। एसिमेट्रिक यानी अनइक्वल डिवीजन होगी। एक बड़ा सेल बनेगा जिसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, इट इज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस इट इज हैविंग, क्लियर। और एक बनेगा जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो है वो थोड़ा छोटा होता है वेजिटेटिव सेल से, और इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज स्पिंडल शेप, क्लियर, इसी की शेप जैसा इसका न्यूक्लियस होता है, क्लियर। अब ये कौन सी स्टेज है बेटा, टू सेल्ड स्टेज, क्लियर। इस माइक्रोस्पोर में कितने हैं, 2 सेल्स हैं, तो दिस इज टू सेल्ड स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है बेटा, हमारा जो पॉलन टू सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। ये क्या थे, हमारे माइक्रोस्पोर्स थे। ये माइक्रोस्पोर जब अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे, क्लियर। अब ये पॉलन में क्या हुई, एसिमेट्रिक डिवीजन हुई, उसमें क्या हुआ, एक बड़ा सेल बना जिसको हमने वेजिटेटिव सेल कहा, एक छोटा सेल बना जिसको हमने जेनरेटिव सेल कहा। तो इसमें कितने सेल्स है बेटा, 2, तो ये क्या है, टू सेल स्टेज। अब 60% एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं बेटा जो अपने पॉलन ग्रेन्स को टू सेल स्टेज पे रिलीज कर देते हैं, क्लियर। और बेटा बच गए जो 40% एंजियोस्पर्म्स, उनमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज पे रिलीज होता है। ये जनरेटिव सेल क्या करेगा, आगे चल के डिवाइड करेगा इनटू 2 मेल गैमेट्स, क्लियर। दिस वाज वेजिटेटिव सेल, दिस इज जनरेटिव सेल। अब ये जनरेटिव सेल क्या करेगा, आगे 2 में डिवाइड कर जाएगा। अब इन